السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک پیج اور میں ہوں فروا وحید۔ ایران امریکہ جنگ بندی کرانے اور دونوں کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششوں میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس ابھی بھی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں، اور دوسری جانب پاکستان بھی مذاکرات کے بغیر نتیجہ ختم ہونے کے بعد آرام سے نہیں بیٹھا بلکہ مزید متحرک ہو گیا ہے، اور اب وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب اور قطر کے دورے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ کل سعودی عرب کے لیے روانہ ہوں گے۔ انٹرنیشنل سطح پر کئی ممالک سے رابطے بھی شروع ہو چکے ہیں، اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ ایک آدھ ہفتے میں ایران اور امریکہ کا مذاکراتی وفد ایک اور میٹنگ کے لیے ساتھ بیٹھ سکتا ہے۔ دوسری جانب عالمی دنیا مشرق وسطیٰ کے امن کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ چین سے لے کر اسپین اور برطانیہ سے لے کر آسٹریلیا تک سبھی ممالک امریکہ کو غلط اور جنگ بندی کے لیے کہہ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ سابق امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے بھی واضح کہا ہے کہ حالیہ کشیدگی کے بعد ناکام مذاکرات کے باعث ایران تگڑی جبکہ امریکہ کمزور پوزیشن میں آ چکا ہے اور امریکہ نے اپنی سفارتی برتری کھو دی ہے۔ امریکہ پر جنگ کا جو بھوت سوار تھا وہ قدرے تھم چکا ہے۔ محض یورینیم کی افزودگی روکنے کے پوائنٹ پر ایران کو راضی کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ تمام مطالبات میں امریکہ اور ایران تقریباً متفق ہے، مگر ایران یورینیم کی افزودگی روکنے کے بدلے گارنٹی چاہتا ہے اور اپنی خود مختاری پر سمجھوتا کرنے کے لیے قطعی تیار نہیں دکھائی دیتا۔ ادھر پاکستان مشرق وسطیٰ کے امن کی خاطر ایران امریکہ کے مابین جنگ بندی کے لیے متحرک ہے، اور اس عمل میں ساری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ ایران سے جنگ بندی کے بعد مشرق وسطیٰ سے اپنے اڈے بھی ختم کرے گا، یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کوئی نیا ایڈونچر ڈھونڈ لیں گے اس خطے میں۔ اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ایمبیسڈر جاوید ملک صاحب، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے ملک صاحب۔ ان کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر برائے آبی وسائل میاں محمد معین وٹو صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اور کچھ دیر میں ہمیں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب بھی جوائن کر لیں گے۔ تینوں کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ جاوید ملک صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں مختلف ذرائع سے، سی این این کوٹ کر رہا ہے، پاکستانی میڈیا پر بھی کسی حد تک بڑی محتاط انداز میں ہی چلائی جا رہی ہیں کہ ایک اور راؤنڈ ہو سکتا ہے گفتگو کا۔ البتہ وینیو کے اوپر تھوڑی کنفیوژن ہے، کوڈ بی پاسبل کہ یہ اسلام آباد 2.0 ہو، اور اگر یہ نہیں بھی ہوتا تو کہیں نہ کہیں پاکستان ہی ایکچولی سے لیڈ کر رہا ہوگا، لیکن وینیو ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے۔ ایک تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک متفق ہیں دونوں پارٹیز ایک اور گفتگو کرنے کے لیے؟ ابھی آپ کو یاد ہوگا، آپ کے ساتھ ہی اس ون پیج پروگرام میں جب ہم بات کر رہے تھے تو جب یہ ڈائلاگ کا سلسلہ اسلام آباد میں شروع ہونے کو تھا، بلکہ ہو بھی رہا تھا، اس وقت بھی کچھ حد تک یہ بات کی جا رہی تھی کہ آف کورس شاید ابھی ہی رزلٹ نکل آئے، لیکن میں نے کوشش کی تھی کہ میں یہ کہوں کہ دیکھیے یہ جو تنازع ہے یہ اتنا پیچیدہ ہے کہ اس کو ایک سیشن کے اندر اس کا حل ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، جی تھینک یو، اور میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے یہ اس کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ ڈیڈ لاک ہو گیا ہے یا کوئی بریک ڈاؤن ہو گئے ہیں تعلقات۔ بریک تھرو نہیں ہوا، لیکن بریک ڈاؤن بھی نہیں ہوئے۔ دیکھیے وہاں سے امریکہ سے اتنا ایک ہیوی ویٹ ڈیلیگیشن آیا، ہمارے ہاں سے بھی جو ہے ہماری بہت کاوشیں تھیں، ایران کا ڈیلیگیشن بھی بہت اسٹرانگ تھا، اور اوبیسلی ڈپلومیسی جو ہے وہ ایک پروسیس کا نام ہے، وہ ایک ایونٹ کا نام نہیں ہے کہ ایک ہی ایونٹ سے ہم تمام امیدیں وابستہ کر لیں۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ یہ پروسیس ہے، یہ کنٹینیو کر رہا ہے۔ پاکستان نے اس حوالے سے رابطے رکھے ہوئے ہیں۔ ایون اگر آپ جے ڈی وینس کا کل کا فاکس نیوز پہ جو انٹرویو دیا انہوں نے، ان سے اس کو آپ دیکھیں گی، اس سے بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ ایک ونڈو آف اپرچونٹی ابھی تک اوپن کیے ہوئے ہیں۔ کچھ معاملات ایسے ہیں جن کے اوپر آف کورس وہ ان کو ریڈ لائنز کا نام دیتے ہیں، اگر آپ چاہیں گی تو میں اس پہ بھی بعد میں بات کر لوں گا، لیکن وہ ریڈ لائنز کے علاوہ باقی جو معاملات ہیں ان پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے درمیان جو ہے وہ اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ تبھی آپ دیکھیے ایک شخص ہے، وہ وائس پریزیڈنٹ ہے امریکہ کا، وہ تقریباً 16-17 گھنٹے فلائی کر کے اسلام آباد آتا ہے، پھر 23 گھنٹے نان سٹاپ میٹنگ کرتا ہے، تو obviously وہ سیریس نہ ہو تو وہ کیوں کرے؟ تو دیر آر سیریس میننگ فل ڈائلاگ ہے۔ ایران کے لوگ بھی ہمارے تقریباً 70 یا 75 لوگوں کے ساتھ وہ آئے تھے، ان کا ڈیلیگیشن، تو obviously they both want کہ اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے، لیکن آف کورس مسئلہ پیچیدہ ہے، ایک سیشن میں نہ ہو، 2 میں نہ ہو، 3 میں ہو جائے گا، لیکن انشاءاللہ ہوگا۔ تو ہم اس حوالے سے پر امید رہیں گے کہ یہ ڈسکشن کا جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا، بیکاز اس
تنازع کا حل نہ ہونا یہ ایک آپشن نہیں ہے، کیونکہ اس کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو ہر چیز آپ کو تباہ و برباد ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، چاہے وہ اکانومی ہو، چاہے آپ کی لاجسٹکس ہوں، چاہے آپ کے سی روٹس ہوں، چاہے خدا نہ خواستہ کوئی اسٹریٹجک اسٹرائکس ہوں. مطلب نو بڈی وانٹس کہ ہمارے ملک میں اور ہمارے خطے میں اور ہماری دنیا میں اس قسم کی ہولناک تباہیاں ہوں. تو اس کو روکنے کے لیے جو بھی کاوشیں کی جا رہی ہیں اس کو تحمل مزاجی سے اگر ہم دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ پر امید ہے ہم کہ اس پروسیس کا سلسلہ جاری رہے گا and we will be able to achieve some good results in the end. Exactly, after 47 inshallah after 47 years میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب بھی موجود ہیں. زاہد صاحب، ایران اور امریکہ براہ راست بیٹھے ہیں پاکستان میں آفٹر سچ اے لانگ ٹائم، اور پھر انہوں نے ڈسکشن کی ایک بڑی جسے کہتے ہیں جے ڈی وینس نے باقاعدہ جاتے ہوئے کہا تھا کہ آئی تھنک یہ سب سے لمبی ڈسکشن ہوئی ہے ایران کے ساتھ اب تک کی جو پاکستان میں سرینا میں بیٹھ کر ہوئی ہے. اب ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ دوبارہ بیٹھنے کی بات ہوگی، تو ظاہر ہے پاکستان اس میں بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے بیکاز وی ہیو آر اون بینیفٹس ایز ویل، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ہم خطے میں امن چاہتے ہیں، امن سب سے بڑی چیز ہے. اب کل وزیر اعظم جب سعودی عرب جا رہے ہیں، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ڈاٹس کو اگر ہم جوڑیں، ایم بی ایس کا کردار کے لیے وہ بولیں گے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قطر بھی اس میں اپنا حصہ ڈالے گا؟ اور یہ جو اگلی ملاقات ہے یہ آپ کو کب تک ہوتی ہوئی، اس ہفتے تو شاید پاسبل نہ ہو، اگلے ہفتے ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیے، اس کو ایک چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ پاکستان یہ جو چیز لے کر چل رہا ہے، دس از کالڈ پروسیس. یہ کوئی ایونٹ نہیں تھا کہ جی ایک ایونٹ ہوا اسلام آباد میں اینڈ دیٹ از اوور. سو دس از اے پیس پروسیس وچ از گوئنگ آن. اور یہ جتنے بھی ملاقاتیں آج کل ہو رہی ہیں، ٹیلی فونک گفتگو ہو رہی ہے، ایوری ون از ٹاکنگ ٹو ایوری ون. ابھی میں قطر کی ایک پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، شہباز شریف صاحب کی، ادھر بھی ہز ہائنس سے بات چیت ہوئی ہے. رائل ہائنس جو ہیں وہ دنیا میں سب کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. پاکستان یورپ میں بھی بات چیت کر رہا ہے، چائنا کے ساتھ. تو پروسیسز میں یہی ہوتا ہے. پاکستان اس میں کلیدی رول ایک ادا کر رہا ہے جی، سینٹر آف گریوٹی ہے اس پورے سسٹم پروسیس کا. اور پاکستان کو سپورٹ حاصل ہوگی، سب کشننگ کر رہے ہیں کیونکہ ایوری بڈی از انٹرسٹ. آج دیکھیں نا، فرانس اور یو کے جو ہے وہ ویڈیو کانفرنسنگ کرنے لگے ہیں اپنی ہرمز کے بارے میں. 40 کنٹریز کا آلریڈی اس پہ ہو گیا. پھر نیوکلیئر کی چیزیں، اب امریکہ کے اوپر بھی یہ پریشر بڑھے گا کہ جی ہرمز تو ہے، یہ تو بائی پروڈکٹ آف وار ہے. تو آپ بائی پروڈکٹ آف وار ہمیشہ بڑی ڈینجرس چیز ہوتی ہے جی. اس کی ایک ایگزامپل تو آپ نے طالبان حکومت دیکھ لی افغانستان کے اندر، جو چلڈرن آف کانفلکٹ وہاں بائی پروڈکٹ پہ جب پابندی لگائی، امریکہ نے بھی روکنے کی کوشش کی، تو چین کے تو جہاز نکل گئے. وہ بائی پروڈکٹ کی سمجھ ہی نہیں آئی ہمیں کہ اس میں اس بات کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں کہ دیکھیں پھر یہ پروسیس ابھی چل رہا ہے. اور انشاءاللہ ٹائم لائنز تو ہم نہیں دے سکتے کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اور یہ واحد ٹاکس ہیں جو میڈیا کے لیے، میڈیا کی کنزمپشن کے لیے نہیں ہو رہی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد کے اندر بھی بہت سے لوگ باتیں کر رہے تھے کہ جی ہمیں خبریں نہیں تھیں، اطلاع نہیں دی گئی. بٹ دس از ناٹ فار دا میڈیا اینڈ فار دس از اے اسٹریٹجک ویری سیریس کانفلکٹ جی. اور اس کو لمٹ رکھا جا رہا ہے. بہت کم لوگ ہیں پریوی ہیں ان ٹاکس کے بارے میں، کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. 90% جو ہے نا اسپیکولیشن چل رہی ہیں. فیکٹس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ فیکٹس یہی ہے کہ اسلام آباد میں ٹاکس ہو چکی ہیں، پروسیس شروع ہو چکا ہے. 47 ایئرس کے بعد یہ آ گیا ہے. پاکستان نے جو 3 انیشل آبجیکٹیوز تھے، سیز فائر کرانا، ان کو اکٹھے بٹھانا اور ایک ایجنڈے کے اوپر بات چیت کرنا، وہ نیرو ڈاؤن ہوتے ہوتے نیوکلیئر اینڈ ہرمز کے تقریباً ارد گرد گھوم رہے ہیں. پرائمریلی اٹ از ریوالونگ اراؤنڈ نیوکلیئر. اس میں آلریڈی ایران کافی کنسیشنز پہلے بھی اناؤنس کر چکا تھا، اور آئی ایم شیور کہ ہرمز کے اوپر بھی جو امریکن سٹانس ہے اس سے وہ پیچھے جائیں گے اور چیزیں کافی بہتر ہو جائیں گی. تو آئی تھنک دیر آر سائنز ایسے ہیں کہ یہ ٹاکس آگے بڑھیں گی. پھر تینوں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی، جے ڈی وینس بھی اور ایرانین سائیڈ پوری، انہوں نے اس پروسیس سے سیٹسفیکشن شو کی ہے کہ اوورآل دے آر سیٹسفائیڈ اور دے آر سیٹسفائیڈ ود دا پاکستانی رول. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس پروسیس کو ریٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہ پروسیس مسٹ گو آن انڈر پاکستان، اور اسی طریقے سے یہ چلتا رہے گا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ آپ کو اگلے 72 گھنٹوں میں اچھی خبریں ملیں گی. انشاءاللہ اللہ کرے اچھی خبریں ملے. سلو اینڈ اسٹڈی والا پروسیس ہونا چاہیے، بس سود مند ثابت ہونا چاہیے، جیسے بیسٹر صاحب بھی کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں. اچھا، میڈیا پر میں تھوڑا سا کامنٹ کرنا چاہوں گا، وٹو صاحب کی طرف بھی جاتی ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا کہ میڈیا وہاں پر خبریں ڈھونڈ رہا تھا. یہ کچھ ساتھی جرنلسٹ کے لیے بھی ہے اور ویسے اوورآل پاکستانی عوام کے لیے، اور خاص کر کے وہ لوگ جو ٹویٹر پر بیٹھے ہوئے تھے کرٹیسائز کرنے کے لیے جرنلسٹ کو. ہر چیز یا ہر ایونٹ
ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए नहीं होता है, खबर निकालने के लिए नहीं होता है। बहुत ही सेंसिटिव गुफ्तगू वहाँ पर होल्ड की जा रही थी सरीना में। और जो व्हाट्सएप ग्रुप का इल्ज़ाम लगा रहे हैं सहाफ़ियों पर, आई नो कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के व्हाट्सएप ग्रुप की लड़ाई के ऊपर तबसरा करना नहीं है, या किसी ऐसे सहाफ़ी की खबर नहीं है जो बैरून मुल्क बैठकर बता रहा है कि ईरानी जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं वो उनकी लड़ाई हो गई वैंस के साथ, और ये इस तरह की खबर नहीं है। ये बहुत सेंसिटिव खबर है, और इस तरह की खबरें मेरा ख्याल से स्कूप नहीं भी होगा तो जर्नलिज्म सीधा होना चाहिए। इस पे सिर्फ तज्जिया हो सकता है, जो रिपोर्ट किया जा रहा है वही हो सकता है, और इंटरनेशनली भी यही बातें हो रही थी। अगर उन तक कोई खबरें उनकी एम्बेसीज के थ्रू पहुंच रही थी तो वो भी आई एम डैम श्योर कि बहुत फिल्टर्ड पहुंच रही होंगी। और पाकिस्तान ने अगर ये काम नहीं किया तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हर टाइम हमें जर्नलिस्ट को ये नहीं देखना है कि वो हमें कोई अंदर से स्कूप निकाल के दे। खबर को खबर की रूह की तरह लेकर चलना भी सीखना चाहिए। When there is no news, it's a news itself. Anyways, let's move to भुट्टो साहब। भुट्टो साहब, पाकिस्तान जो कोशिश और काविशें कर रहा है, कल वज़ीर आज़म साहब जाएंगे सऊदी अरब, MBS के साथ मुलाकात भी मुतवक्के है, और साथ भी सऊदीया बहुत ज़्यादा दे रहा है पाकिस्तान का। कितने पुरुमीद हैं वज़ीर आज़म साहब और उनकी काबीना? यकीनन जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जावेद मलिक साहब और जनरल साहब की जो एनालिसिस है मैं उससे इत्फाक करता हूँ। और दूसरा ये कि ये बड़ा एक नाजुक और हसास मौजू है जिस पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो काबिल फ़ख्र और काबिल इज़्ज़त बात ये है कि पाकिस्तान को ये एज़ाज़ हासिल हुआ, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी फील्ड मार्शल साहब और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब की जो शबाना रोज़ कोशिश है वो ये रंग लाई है कि ये बहुत बड़ा एक काम है कि ईरान और अमेरिका को इकट्ठे करना, एक टेबल पे लाना, उनकी आपस में नेगोशिएशन करवाना, ये बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और जहाँ तक उस नेगोशिएशन के नताइज का ताल्लुक है, वो जैसे जनरल साहब और मलिक साहब ने कहा कि वो इंशाअल्लाह ताला हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह के फजल करम से जिस तरह पाकिस्तान अपने वो पहले नेगोशिएशन के इस प्रोसेस को फॉलो अप दे रहा है, और उस फॉलो अप की वजह से इंशाअल्लाह इसका जो है वो पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा। जहाँ तक दोनों ममालिक ईरान और अमेरिका का ताल्लुक है, आप ये देखें कि पाकिस्तान ने इतने खूबसूरती से इन मज़ाकरात में और इस जो पीस का जो प्रोसेस है उसमें अपना रोल इतने अच्छे बेहतरीन तरीके से अदा किया है कि दोनों ममालिक के नुमाइंदगान ने, उनके उहदेदारान ने यहाँ से रवानगी के वक्त भी पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है। और पाकिस्तान के लिए बड़े मुस्बत जो है ना वो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। अब भी मैं एम्बेसडर साहब कह रहे थे फॉक्स न्यूज़ को जो इंटरव्यू दिया था वेंस ने, उसमें भी बकायदा उन्होंने जिक्र किया, दोनों का शुक्रिया भी अदा किया। उसमें बकायदा ये जिक्र किया उन्होंने कि जी ये जो इसमें अभी आज हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके फिलहाल, तो इसमें पाकिस्तान की कोशिशें जो है उनमें कोई कमी नहीं है कि पाकिस्तान जो है ना उसने अपना भरपूर किरदार अदा किया है। और ये मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। और ये जो ईरान और अमेरिका के दरमियान ये जो पीस जो मुआहदा है, इसका मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ दो ममालिक के दरमियान नहीं है बल्कि पूरी दुनिया का ये एक अमन का मसला है। और पूरी दुनिया के अमन के मसले में पाकिस्तान का जो कलीदी जो रोल है वो काबिल सताइश है, वो काबिल इज़्ज़त है। और पाकिस्तान को ये इस बात पे यकीनन बड़ा एजाज़ जाता है कि पूरी दुनिया में आज पाकिस्तान के बारे में मुस्बत एक अंदाज़े फ़िक्र जो है ना वो पैदा हुआ है कि पाकिस्तान अमन के लिए कितना कोशिश है और कितना किस कदर उसने कोशिश करके। यानी आप कह रहे हैं कि ना सिर्फ वो पहलगाम के प्रोपेगेंडा करने वालों के मुंह पर ये बहुत बड़ा तमाचा है,
बल्कि वो हर नेशन जो पाकिस्तान को पोर्ट्रे करना चाह रही थी, या वो ना सिर्फ कि ये टेररिस्ट को प्रमोट करते हैं या ये वॉर मॉन्गर्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ा तमाचा है। बट इसके साथ मैं एक और चीज़ भी ऐड कर रही हूँ कि इतनी कोशिशें और काविशें पाकिस्तान की तरफ से हो रही हैं और एक बड़ी ताकत बन के उभरा है। मलिक साहब, आपने गुफ्तगू सुनी मिनिस्टर साहब की भी, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने सबक किया। इसका मतलब है कि बड़ी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान इस पर कोशिश करेगा, मज़ीद और करेगा, ताकि चीज़ों को जो है बेहतर किया जा सके। बट आपसे सवाल ये है कि अभी स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो वेंट टू चाइना, ही वॉज इन अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक स्पिरिट, और जो उन्होंने गुफ्तगू की है, जिस तरह उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब को ना सिर्फ अड्डे देने से इनकार किया, हवाई लिमिटेशंस भी लगा दी, और यूरोप ने एक चेंज शो किया है। ट्रंप साहब कहीं ये फ्रस्ट्रेशन में कोई गलती तो नहीं कर बैठेंगे? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पूरा चेंज ऑफ ब्लॉक हो रहा है, यूरोप को भी अब कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं। जी देखिए, ग्लोबल चेंजेस तो आ रही हैं डेफिनेटली, बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप ने ही यूरोप को काफ़ी दफ़ा तनकीद का निशाना बनाया। नेटो को भी वो कहते हैं कि उन्होंने भी उनका साथ नहीं दिया। उनके जो ट्रेडिशनल हलीफ थे, यानी एलाई, स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई इन द वर्ल्ड, जो ब्रिटेन और अमेरिका, हमेशा आप देखते जाएं पिछले 100 साल में उनकी हमेशा एक बड़ी क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप रही है। जनरल साहब आपको बताएंगे, इवन मिलिट्री के हवाले से उनकी तमाम स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो हैं वो यूनाइटेड हैं, लेकिन उसके बावजूद इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अकेले हैं। लेकिन देखिए, हम क्योंकि अभी इसके पीस प्रोसेस का जो सेकंड राउंड है उसके हवाले से फोकस्ड हैं, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरी आप जानती हैं कि बिफोर आई बिकेम एन एम्बेसडर मेरा ताल्लुक मीडिया से भी रहा है, और मेरे कुछ रवाबित अभी भी मौजूद हैं मीडिया के अंदर, ब्रिटेन में भी, अमेरिका में भी। और मैं जो बात उनसे मेरी हुई है कुछ लोगों से जो बहुत करीब हैं इस प्रोसेस के, वही हमें कहते हैं कि अमेरिका में इस वक्त ये फीलिंग बहुत स्ट्रांगली पाई जाती है कि दे हैव टू गेट आउट ऑफ दिस वॉर, लेकिन एट द सेम टाइम एक चीज़ जो है उसके ऊपर उनका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। वो ये समझते हैं कि ईरान को न्यूक्लियर एम्बिशंस जो हैं वो अपनी फोरगो करनी पड़ेंगी, एक ये बात। और दूसरी जो उनकी सपोर्ट है उनके बकौल, या उनका ओपिनियन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, कि वो ये समझते हैं कि ईरान कुछ प्रॉक्सीज को इस रीजन में सपोर्ट करता है। जैसे कि अगर आप हूतीज़ का नाम ले लेते हैं लेबनान के अंदर, या फिर इवन इराक में हिज़्बुल्लाह एंड ऑल, तो अगर वो इनको इसके हवाले से अपने आप को कंट्रोल में ले आते हैं। दूसरा ये है बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कर देते हैं, तो देखिए एक अपॉर्चुनिटी है ईरान के लिए। आप जानती हैं, हमसे पहले भी बात हुई थी कि ईरान के पास अबंडेंट रिसोर्सेज हैं, उसके पास तेल है, मादनियात हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी जो पॉपुलेशन है बहुत पढ़ी लिखी है और वो अपने हुनरमंद लोग हैं। तो अगर वो अपनी फोकस को थोड़ा सा परपेचुअली जंग के अंदर उलझाने के बजाय अगर वो रीथिंक करें अपनी स्ट्रैटेजी कि इस मामले को रिजॉल्व करने के बाद ईरान को तामीर और तरक्की की तरफ लेकर जा सकें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा 40 साल से अगर आप जंग में होंगे तो ऑफ कोर्स आपका हर जो आपका एलिमेंट ऑफ सोसाइटी है वहाँ पे आपको एक तरह से प्रेशर ही रहेगा। आपको याद है, बल्कि आप जानती हैं कि हमारे यहाँ जब कभी 1 या 2 रुपए डॉलर चेंज करता है अपनी प्राइस में तो कितना इम्पैक्ट होता है। अगर आप ईरान की करेंसी देखें तो लाखों में है, $1 इज लाइक मे बी 100,000 या इससे भी ज़्यादा रियाल। तो देखिए इकोनॉमिक चैलेंजेस उनके तभी ख़त्म होंगे जब वो अपने इस हवाले से रिव्यू करेंगे। अगर उनकी सैंक्शंस उठ जाती हैं, उनको ट्रेड करने की दुनिया से इजाज़त दी जाती है और वो दुनिया की जो कमिटी ऑफ नेशंस है उसका एक पॉजिटिव हिस्सा बन जाते हैं, तो इसका डायरेक्ट जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो उनके अवाम को होगा। तो आई थिंक इस हवाले से ईरान के अंदर भी एक सोच पाई जाती है कि वो ये समझते हैं कि उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो इस डील को स्ट्राइक कर लेते हैं और इस तरह से कुछ मामला पे वो फ्लेक्सिबिलिटी का इजहार कर देते हैं तो अपने ग्रेटर इंटरेस्ट में वो अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत आगे जा सकते हैं। तो एक सोच ये भी है, आई होप कि इसके ऊपर भी और किया जाएगा। लेकिन बहरहाल ये डिस्कशंस जो हो रही हैं इनके अंदर इन तमाम चीज़ों को मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से भी बावर कराने की कोशिश की जा रही है। और वंस अगेन वी हैव टू गिव क्रेडिट टू द फील्ड मार्शल, यानी आपने अगर प्रेसिडेंट ट्रंप की वो ट्रूथ सोशल पे स्टेटमेंट देखें, वो प्राइम मिनिस्टर और आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल साहब का नाम लेते हैं, तो पाकिस्तान जिस तरह से ग्लोबल स्टेज के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह एक पीस मेकर के तौर पर उभर रहा है, इसका क्रेडिट हमारे प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल साहब को जाता है एंड इट क्रेडिट मस्ट बी गिवन वेयर इज ड्यू। एग्जैक्टली, यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, बट आई डिसेंड ऑन अ पॉइंट व्यू। मैं उस पर ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक्सटेंशन की भी बात की जा रही है कि सीज फायर की जो डेट है इसको आगे बढ़ाने के ऊपर गौर किया जाए। एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक। जनरल साहब, एम्बेसडर साहब बता रहे थे कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज है उस पर भी अमेरिका चाहता है कि एक हद मुकर्रर की जाए और वो हो, और ईरान के पास एक अच्छा मौका है कि वो अपने ऊपर से सैंक्शंस हटाए और तरक्की में दुनिया की जो है वो भी शामिल हो और वो भी तरक्की उस तरीके से करे। अलबत्ता ईरान ने सैंक्शंस के बावजूद विद इन कंट्री बहुत सारी चीज़ों पर तरक्की की है जो दुनिया को शायद इस जंग के बाद दिखी हैं, मगर वो सही कह रहे हैं कि इकोनॉमी के लिहाज से ईरान जो है वो बड़ा नीचे चला गया हुआ है, तो उसको उठाने के लिए उनको अब ज़ाहिर है कि सैंक्शंस का उठना भी ज़रूरी है। आप कैसे देख रहे हैं इसको, क्योंकि जब हम न्यूक्लियर की बात इजराइल के हवाले से करते हैं तो हमें अमेरिकन्स ये बताते हैं कि इट इज़ टू बैलेंस मिडल ईस्ट, पर जब हम ईरान के हवाले से बात करते हैं बैलिस्टिक रेंज के हवाले से तो वो हमें बताते हैं कि इट इज़ थ्रेट टू मिडल ईस्ट। ये कैसी इक्वेशन है? देखिए, ईरान का जो एक नैरेटिव वहां पे रहा है या चलाया गया या जो एनवायरनमेंट क्रिएट की गई वो एंटी इजराइल एंड एंटी मिडल ईस्ट, एक कंटेस्टेशन तो रही जी। हमने यहीं पे इराक ईरान वॉर देखी जस्ट आफ्टर द रेवोल्यूशन। ये वो वक्त था कि जब इनके जो सुप्रीम लीडर थे उन्होंने इसको हराम करार दिया था जी। वो न्यूक्लियर को उन्होंने कहा था कि आप कभी भी परसू नहीं करेंगे कि इट इज एंटी ह्यूमैनिटी, बट यू वर पुट इनटू द वॉर और फियर्स क्रिएट किए गए और कुछ चीजें हुई भी ऐसी कि जिससे फियर्स क्रिएट किए गए। और अब भी इजराइल की कोशिश यही है कि ये एक इंट्रा अरब कंटेस्टेशन रहे। उसकी वजह यह है कि इजराइल का जो जूइश ज़ायनिज्म की जो एप्लीकेशन है एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स के साथ, विच इज बेस्ड ऑन हेट एंड ब्लड, तो उनको फ्रिक्शन चाहिए। वो थ्राइव भी तब करते हैं जब फ्रिक्शन मौजूद रहेगी, लड़ाई मौजूद रहेगी, और उनको अपना और वो एक काइंड ऑफ एग्जिस्टेंशनल थ्रेट बन गए इस ईरान के लिए, क्योंकि ईरान को वो सबसे बड़ी हर्डल समझे कि टेक आउट ईरान, बाकी हम चीजें खुद ही कर लेंगे। तो उस वजह से फिर एक कंसर्न क्रिएट किया। फिर उनकी जो लीवरेज है इजराइल की अमेरिका के अंदर, जो इस एप्लीकेशन के बाद एरोड होना शुरू हो जाएगी। आप देखिएगा आज भी न्यूयॉर्क के अंदर लोग समझते हैं एरोड होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा है। बिल्कुल, देखिए बात मैं इसलिए समझता हूं कि बातें शुरू हो गई है अमेरिका के अंदर की ये जो इजराइल है ये हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर या स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी है। देखिए ना, आज जो न्यूयॉर्क में जो शर्ट्स पहनी हुई है लोगों ने जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पे क्या लिखा, उन्होंने लिखा हुआ कि डोंट फंड पीपल नॉट बॉम्ब्स। कि अपना जो फंड है आप जो लोगों पे इधर लगाना है इन पे लगाइए, आप उन पे बॉम्ब बनाने पे और उनकी वॉर लड़ते जा रहे हैं बिकॉज दे हैव डिसओन्ड दिस वॉर। 60% पहली दफा मेरे ख्याल में कोई अमेरिका वॉर कर रहा है व्हिच हैज बीन डिसओन्ड बाय द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 60% अबाउट, इट्स अ ह्यूज रेटिंग। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इंपैक्ट हो रही है, लोग इंपैक्ट हो रहे हैं। अब ये जो लोग हैं ना जो प्रेसिडेंट ट्रंप को जो मशवरा देते हैं, कुछ सेनेटर्स हैं, कुछ लॉबीज हैं इजराइल की, फिनिश द जॉब। फिर तरीका भी बताया ना कि हाउ टू फिनिश द जॉब। जॉब कैन नॉट बी फिनिश्ड लाइक दिस। बट देयर वॉन्ट बी एनी गारंटी, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, बट देयर वॉन्ट बी एनी गारंटी, क्योंकि अगर आप इजराइल ईरान को माजरत के साथ उसकी जो ब्रांचेस है उसको ख़त्म करने का कहते हैं, फॉर एग्जांपल एम्बेसडर साहब ने कोट किया कि हौसीज़ हैं, हिजबुल्ला है, चले मैं इसमें हमास भी ऐड कर लेती हूँ, देन व्हाट अबाउट दैट पीस बोर्ड जिसने जंगबंदी कराई थी और उसके बावजूद गज़ा में आए रोज़ लोग मर रहे हैं, और उनके ख़त्म होने के बाद क्या इन तमाम ब्रांचेस के अमन आ जाएगा मिडल ईस्ट में? तो ये बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं जिसके साथ आप इजराइल को लेकर चल रहे हैं। मैं अमेरिकन की बात कर रही हूँ, एंड वी ऑल नो कि इसमें स्पॉइलर कौन है, तो इसकी भी तो गारंटी नहीं दी जा सकती ना। देखिए फरवा, पीस इज ऑफ टू काइंड जी। अगर आप पीसफुल होना चाहते हैं मेगा स्पिरिट के साथ, पहले नेगेटिव पीस ये है कि जी आप ये लड़ाई शड़ाई खत्म कर दें, जैसे भी ईरान और अमेरिका की है, चले जी फिर टेम्परेरी बंद कर दें, सीज फायर हो गया, खत्म हो गया। एक है पॉजिटिव पीस। पॉजिटिव पीस के लिए आपको जो फंडामेंटल रूट कॉजेज है ऑफ वॉर है वो खत्म करने पड़ते हैं, जो परमानेंट इन नेचर, फिर पीस आता है। तो ऑफ कोर्स अगर ये इस रहेगी एक लेट्स से कि टू स्टेट सॉल्यूशन जो गाजा बोर्ड पे में भी 19वां 20वां पॉइंट बेशक हो, पाकिस्तान पे भी बहुत क्रिटिक लोगों ने की, जी आपने क्यों ज्वाइन कर लिया, ये इसलिए ज्वाइन कर लिया कि और कोई सरा है ही नहीं। आज देखिए ना, ऑफ रैंप कौन दे रहा है अमेरिका को और ईरान को? पाकिस्तान। कोई यूएन से तो नहीं आ रहा, या चाइना या रशिया या कोई बड़ी ताकतें तो नहीं शामिल हो गई, कोई नेटो तो नहीं लेके आ रहे, ओआईसी ने तो नहीं करवा दिया, कोई रियाद या कोई और कंट्री इस्लामिक कंट्रीज ने तो नहीं सब है। इट इज पाकिस्तान हु इज प्रोवाइडिंग दिस, हु इज बीइंग यूज्ड एज एन एग्जिट कार्ड एंड कार्ड फॉर द ऑफ रैंप फॉर बोथ द कंट्रीज।
तो देखिए ये इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट, ये जो वर्ल्ड है ना, ये डिसऑर्डर में चल रहा है। ठीक है। वो जो पॉपुलर फंक्शनिंग ऑफ द वर्ल्ड था वो नहीं चल रही कि जी वो सिक्योरिटी काउंसिल की आ गई जी, अब ये हो गया, सिर्फ और मिलिट्री अब पोस्ट मेरा हिट ख्याल क्या से हो रहे हैं। वो वक़्त भी नहीं रही है सिक्योरिटी काउंसिल की बात आपने की है। कम कर दी गई ना, एग्जैक्टली तो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, क्योंकि एक ऐसा पैरामीटर सेट कर दिया गया है, खास करके डोनाल्ड ट्रंप की इस वाली बारी के बाद, इस वाली टर्न के बाद, कि यूं लगता है कि हर वो चीज़ जो अमेरिका कर रहा है, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल, आप वेनेजुएला में देख लें, और उसके बाद जब ईरान मला हुआ, देन क्यूबा को जो थ्रेट है, तो आई मीन कि एक नई चीज़ खुद ही सेट की जाती है और फिर जो दूसरा अगर ये जसारत करता है तो रोका जाता है। मिनिस्टर साहब, पाकिस्तान ज़ाहिर है कि अब चाहेगा तो यही कि ये जो मुज़ाकरा है वो हों, और क्या मैं आपसे जसारत कर रही हूँ पूछने की, क्या हम इस्लामाबाद पर ही तवक्को रखें कि वहीं पर ही होगा, वही वेन्यू होगा, या फिर ये कहीं शिफ्ट भी हो सकता है? साथ ये भी पॉइंट एक ले लें, क्योंकि मिज़ल्स की बात एम्बेसडर साहब ने भी की, जनरल साहब ने भी की, आपको क्या लगता है कि ईरान इतनी 40 दिन की लंबी लड़ाई अपने लीडर्स को खोने के बाद यूरेनियम के ऊपर तो शायद किसी हद तक लचक दिखा देगा, जो कि वो पहले भी जिनेवा में दिखा रहे थे, बट क्या वो मिसाइल्स की रेंज पर लचक दिखाएंगे? देखिए जी, यहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक और वेन्यू का ताल्लुक है, वो तो मैं समझता हूँ कि शायद यही जो जगह और वेन्यू रहे, लेकिन ईरान के साथ पाकिस्तान के जितने अच्छे ताल्लुकात अब हैं, मेरे ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान जितनी कोशिश कर रहा है कि ईरान को भी कन्विंस करने की और अमेरिका को भी कन्विंस करने की, ये दोनों जब फरीकैन या दोनों पार्टीज जब किसी बात पे एग्री हो जाएंगे, और मेरे ख्याल के मुताबिक मुझे बड़ी भरपूर उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग पे, जैसे अब वाली मीटिंग जो है, इसको आप ये नहीं कह सकते कि जी ये मीटिंग जो है वो सूदमंद नहीं रही। ये मीटिंग जो थी, ये जो अभी दोनों ममालिक के दरमियान नेगोशिएशन हुई है, इससे बड़े मुस्बत नतायज बरामद हुए हैं, और आइंदा दोबारा जो मीटिंग होगी इंशाल्लाह, उसमें इससे आगे बढ़ने की तवक्को की जा सकती है। और मैं पूरे वसूख से और अल्लाह ताला के फजल करम से ये कह सकता हूँ कि जिस अंदाज में प्राइम मिनिस्टर साहब और फील्ड मार्शल साहब और जिस तरह डीपीएम साहब भरपूर तरीके से फॉलो अप दे रहे हैं, अब भी वो यानी आप कह रहे हैं कि कोशिशें जारी हैं कि इस्लामाबाद में दोबारा ये मुज़ाकरात हो। वैसे तो सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों पर कान नहीं धरने चाहिए, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि शायद ट्रंप साहब को भी बुला सकती है मौजूदा गवर्नमेंट और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, ऐसी कोई खबर है? नहीं, अभी कबल अज़ वक्त है इस तरह की कोई बात करना जी, लेकिन बाहर सूरत जो अमन की कोशिशें हैं, उसके लिए हमें सबको दुआ गो रहना चाहिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को भी ये इज्जत दे कि वो इतनी बड़ी जंग में जो सालसी का और फैसिलिटेटर का जो किरदार है, वो उसने इतने बेहतरीन तरीके से निभाया है कि आज दुनिया में पाकिस्तान की भी इज्जत है। और अगर पाकिस्तान की इस कोशिश की वजह से दुनिया में अमन हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा एक कारनामा होगा, जिसके लिए हम सबको दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला दुनिया में भी अमन कायम करे और अल्लाह पाकिस्तान को भी ये इज्जत अता फरमाए। लेकिन आपने बात घुमा दी है, मैं फिर से सवाल कर लेती हूँ कि क्या उम्मीद रखें हम कि इसी वेन्यू पर MBS भी मौजूद होंगे, ट्रम्प भी होंगे, पज़ेश्कियान भी होंगे, और एक पीस ट्रीटी जो है, वो तो मैंने ये अर्ज किया है कि अगरचे ये कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन इसके बावजूद आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि इंशाल्लाह ऐसे ही हो सकता है, यानी कि चांसेस हैं कि हो सकता है, और इसके लिए ज़ाहिर है कि कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक, पॉसिबिलिटी है जी, पॉसिबिलिटीज देयर, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो हर दो ममालिक के लिए और बाकी भी जितने और हमारे दोस्त ममालिक सब के लिए काबिल कबूल भी है। और इंशाल्लाह ये मुमकिन को कोई और वेन्यू नज़र में है? फॉर एग्जांपल अंकारा हो सकता है, इस्तांबुल हो सकता है, जनेवा भी अनदर डेस्टिनेशन, क्योंकि वहाँ पर भी था, तो इस तरह की कोई ऑप्शन पाकिस्तान के पास मौजूद है? नाम तो पाकिस्तान का ही रहेगा। नहीं, पाकिस्तान ने तो असल में फैसिलिटेट करना है, और अगर पहले हर दो ममालिक ने पाकिस्तान पे ही कंसेंसस किया है
تو میرا خیال ہے اب بھی شاید پاکستان کو ہی پریفر کیا جائے گا، اور دونوں ممالک کو یا باقی جتنے اور اسٹیک ہولڈرز ہیں سب کو پاکستان پہلے بھی قابل قبول تھا، اب بھی پاکستان پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں، اور میرے خیال کے مطابق اب بھی جو نیکسٹ میٹنگ وہ بھی پاکستان میں ہی ہوگی۔ چلے میں اسے ایز اے پراؤڈ مومنٹ جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنے کا ویٹ کروں گی ایک بار پھر، بلکہ ہم سب کریں گے۔ آپ نے کہا کہ اگلی دفعہ بھی پاکستان ہو سکتا ہے، اس کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ میں لیوریج لیتے ہوئے پہلے وفاقی وزیر جو ہمارے ساتھ موجود ہے وٹو صاحب، ان سے سوال کر کے پھر باقی لوگوں سے بھی یہی سوال ہے کیونکہ یہ امن کا معاملہ۔ وٹو صاحب، لیٹس اسٹارٹ ود یو۔ مجھے جلدی سے بتائیے گا کہ یہ جس امن کے پروسیس میں ہم اس وقت ہیں، یہ ظاہر ہے کہ خطے کے لیے تو بہت امپورٹنٹ ہے، پر دنیا کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان اس سے امن کے لیے کوشش تو کر رہا ہے، لیکن ہم بینگ پاکستانیز ہم جانتے ہیں کہ ہماری کوئی اکانومی اس اسٹیچر کی ابھی موجود نہیں ہے، گو کہ ہم ڈیفالٹ کے دہانے پر نہیں ہیں جیسے دعویٰ کیا جاتا تھا۔ تو کیا آپ آنے والے ہیں کہ اس ڈیل کے ساتھ اگر یہ یس ڈیل ہوتی ہے تو پاکستان کو کتنا زیادہ فائدہ ہونے والا ہے؟ ریزروز کے تھرو یا انویسٹمنٹ کے تھرو کچھ پاکستان فائدہ اٹھائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ جو جتنی بھی پاکستان کو کوشش کر رہا ہے یہ کوئی مشروط نہیں ہے کسی چیز سے، نہ ہی ہمیں مشروط کرنا چاہیے، نہ ہی اس طرح کا یعنی ہماری کوئی اپنی ڈیمانڈز اس میں موجود نہیں ہیں، ہم صرف میڈیٹرز ہیں اور ہم نے ابھی تک کچھ اس کے بارے میں بات نہیں کی ہے۔ جی ہاں، لیکن یہ ہے کہ یہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کا جو ایک امیج ہے وہ اتنا پازیٹیو امیج ابھرے گا، اور پاکستان دنیا میں ایک نیا پاکستان اور ایک باعزت اور باوقار پاکستان کے طور پہ جو اپنا نام اس کا آئے گا۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ تمام جو شعبہ جات ہیں، وہ معیشت ہو، وہ پاکستان کی ایک اوور آل جو گڈ ول ہے، اس سب چیزوں میں جو ہے نا وہ پازیٹیو چینج آئے گی، اور پاکستان پہ دنیا کا اعتماد بڑھے گا، اور جب دنیا کا اعتماد بڑھے گا اور پاکستان کے عوام میں ایک کانفیڈنس جو ہے نا وہ پیدا ہوگا، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی اس میں مضمر ہے کہ جب پاکستان کے لوگوں کا اعتماد، دنیا کا اعتماد پاکستان پہ بڑھے گا تو اوور آل وہ ساری چیز، سارا امپیکٹ ایفیکٹ جو ہے نا وہ پاکستان کی فیور میں ہوگا، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام مراحل سے گزرنے کے بعد پاکستان اب اپنی معیشت پہ زیادہ بہتر طریقے سے توجہ دینے کے قابل بھی ہو جائے گا، اور پاکستان جو ہے انشاءاللہ تعالی دنیا میں جہاں بھی اپنے مسائل، اگر وہ دنیا کے مسائل حل کر سکتا ہے تو پاکستان اپنے مسائل بھی انشاءاللہ تعالی ضرور حل کر لے گا۔ بشیر صاحب، سیم کوشچن ہے آپ سے، کیونکہ 7 جنگیں 8 جنگیں غالباً رکوانے کا کریڈٹ لیتے ہیں ٹرمپ صاحب، ان کی جنگ پاکستان رکوا رہا ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، تو فائدہ تو ہونا چاہیے کوئی۔ ایبسلیٹلی دیکھیے ڈیفینیٹلی اس کا دیکھیں 2 چیزیں تو آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کا انڈائریکٹ فائدہ تو پاکستان کو ہے ہی، کیوں اگر یہاں پہ یہ خدا نخواستہ جنگ طوالت اختیار کرتی ہے تو اس کے ڈائریکٹ نیگیٹو امپیکٹ پاکستان کی اکانومی پہ ہوگا، وہ تو ہم جانتے ہیں۔ ابھی بھی ہمارے ہاں آپ جان رہی ہیں کہ کچھ ورکنگ ڈیز جو ہیں ان کو کم کر رہے ہیں، فیول پرائسز کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کو ریزالو نہ ہونا تو ہمارے لیے ویسے ہی نیگیٹو ہے، تو اگر اس کو ریزالو ہم کر لیتے ہیں تو وہ تو ایک مثبت امپیکٹ ویسے ہی ہمارے پہ ہوگا۔ لیکن دوسری بات میں آپ سے یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے الحمدللہ۔ ہمارے ہاں جس کی وجہ سے ہمیں ہمیشہ مشکلات ہوئی ہیں، چاہے وہ اکنامک فرنٹ ہو یا ڈپلومیٹک فرنٹ ہو، ہم نے انفارچونیٹلی اپنا جو سکلز اور ٹیلنٹس ہیں ان کو آپس میں ان فائٹنگ پہ بہت زیادہ کنزیوم کیا ہے۔ ہماری پولیٹیکل جو پولرائزیشن تھی ہمارے ملک میں کچھ عرصے پہلے تک، اس نے ہمارے ملک کو بہت پیچھے کی طرف دھکیلا ہے۔ اب یہ جو ایک پیج پہ آنا، نہ صرف ہم ڈپلومیٹکلی اپنے ملک کو اسٹرانگ کر رہے ہیں، لیکن یہی جو وے آف تھنکنگ ہے نا، جو اپروچ ہے، جو اسٹریٹجی ہے جس پہ آپ کے ملک کی تمام سیاسی اور عسکری قیادت مل کے ملک کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں، تو یہی اسٹریٹجی اگر ہم اپنا کے رکھیں گے باقی شعبوں میں بھی، چاہے وہ اکانومی ہے، چاہے وہ ہمارا ٹریڈ ہے، چاہے انویسٹمنٹ ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ جس طرح ہم نے اس ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ایک فتح لی ہے، ایک کامیابی حاصل کی ہے، آپ یقین کیجئے ہم باقی تمام شعبوں میں بھی اسی اسٹریٹجی کو اپنا کر اپنے طور پر بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جنرل صاحب، یور پوائنٹ آف ویو۔ یہ دیکھیں
प्रोसेस इज ऑन अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक वॉर रुकवाने का ताल्लुक है या जो वॉर का खात्मा है, वॉर रुकवा दिया जी। पाकिस्तान हैज अचीव्ड इनिशियल, पाकिस्तान के ऑब्जेक्टिव से एक सीज फायर करवाया जाए, इमीडिएटली उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, वो हो गया। दोनों पार्टीज के साथ मुज़ाकरात शुरू किए जाएं, वो हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि दोनों के ये मुज़ाकरात बंद कमरे में आमने सामने बैठ के और बड़े अच्छे माहौल में हुए हैं। मैं आपको वैसे जो बाय तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, वेरी कंफर्टेबल। और 20 घंटे बड़ा टाइम होता है जी, घंटे डेढ़ बाद तो वैसे ही दोस्ती हो जाती है, आप अंदर बैठे होते हैं। तो आपने वैसे 72 घंटे कहा है, खुशखबरी आएगी, कंफर्टेबल हो जाती तो प्रोसेस इज ऑन। पाकिस्तान अपने देखिए, पाकिस्तान इज नॉट पार्टी, हमें फरवा जरा ये जरूर पहले से जेर, पाकिस्तान इज नॉट अ वॉरिंग फैक्शन। पाकिस्तान फैसिलिटेटर है, पाकिस्तान ने फैसिलिटेट कर दिया। दोनों कंट्रीज के अपने अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं, अपने अपने डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंडिविजुअल्स के हैं, जो भी हैं वो नुमाइंदगी अब स्टेट की कर रहे हैं। तो वो उनको परसू करने के लिए इट इज देयर चॉइस। दे नो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस उन्होंने अपना किया हुआ है कि वो वॉर से हासिल करेंगे, बातचीत से करेंगे। इतना मैं समझता हूं कि जो टिपिंग पॉइंट सबका आया हुआ है, पाकिस्तान एज एन एग्जिट कार्ड फॉर द ऑफ रैम्प बहुत अच्छे तरीके से उनको अवेलेबल है, दोनों से ट्रस्ट कर रहे हैं, वो अपनी लीवरेज से एक माहौल उससे बना दिया है। चॉइस इज देयर, और नई रियलिटीज में फिर पाकिस्तान देखेगा कि आगे पे कैसे बढ़ेगा। बट गुड थिंग फॉर पाकिस्तान इज कि पाकिस्तान एक सिग्निफिकेंट कंट्री के तौर पर सामने आया है, और अब आगे भी लोग इसको इस रोल में देखेंगे। आज से कुछ अर्सा पहले हम एफ पैक की पॉलिसीज के नजर हुए होते थे कि अफगानिस्तान के साथ हमें ट्रीट किया जा रहा है। आज आप एफ पैक से होके पाकिस्तान has become the Islamabad has become the diplomatic capital of the world, जो वेस्ट में हुआ करता था। हम ओस्लो अकॉर्ड और जेनेवा अकॉर्ड क्या क्या सुना करते थे, तो लोग इस्लामाबाद की तरफ देख रहे। हमने अपना मेन काम कर दिया है विद दिस होप। और पाकिस्तान आपको इतला भी दे दे कि पाकिस्तान आई होप कि दे दी है ऑफर कि आप अगला रिज्यूम करें जी डायलॉग को दोनों कंट्रीज की तरफ। मेरे ख्याल में इन नेक्स्ट 48 आवर्स वी विल हैव गुड न्यूज़। यानी कि नेक्स्ट 48 आवर्स चलें, लेट्स गिव इट लाइक 72 आवर्स, इसमें कोई अच्छी खुशखबरी या ब्रेक थ्रू हो जाएगा। और उस ब्रेक थ्रू ये है कि जी रिज्यूम करें टॉक्स। जी की बात की जा रही है। देखिए ना, इफ अलाउ मी सर, कि प्रेसिडेंट ट्रम्प, जेडी वैंस एंड इरानियन सब कह रहे हैं, पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो इंटैक्ट रखना चाहते हैं प्रोसेस व्हिच इज बीइंग रन बाय द पाकिस्तान। एम्बेसडर साहब जी, एब्सोल्युटली जी, मैं तो पहले दिन से इस चीज़ पे क्लियर हूँ। मैं आई वाज एब्सोल्युटली मेरी डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल भी नहीं थी जब जेडी वैंस वापस गए। मैं देख रहा था मीडिया में कुछ लोग बड़े नेगेटिव हो गए थे कि वो देखिए कुछ नहीं हुआ, बट आई वाज वेरी होपफुल। मुझे मौका मिला है इन चीज़ों को देखने का। ये मीडिया में नहीं हुए थे, वो सोशल मीडिया पर हुए थे। मीडिया पे बड़े मतलब ऑब्वियसली उसके जी इम्पैक्ट उसका होता है हर तरफ थोड़ा बहुत। और ऑब्वियसली मीडिया में हमारे जो बहुत अक्सर तादाद मीडिया में दोस्तों की है, बहनों की, भाइयों की, देर ऑल वेरी गुड प्रोफेशनल्स, और वो बहुत अच्छे अंदाज में, मैं समझता हूँ आपने पहले जो मीडिया के हवाले से बात की वो भी बिल्कुल सही है। आई थिंक मीडिया एक्टेड वेरी रिस्पॉन्सिबली। उन्होंने जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ की दौड़ में जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आई थिंक एवरीबडी हैज़ टू लर्न फ्रॉम दैट। और दूसरी बात यह है कि देखिए जो प्रोसेस है जिसका आप जिक्र जनरल साहब ने भी किया, मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल हकीकत है। और अभी इंशाल्लाह जो हम जितनी भी रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं, चाहे वो न्यूज़ आउटलेट्स से आ रही हैं या कुछ वेल इन्फॉर्म्ड सोर्सेज से आ रही हैं, वो यही कह रहे हैं कि बहुत जल्द जो है वो सेकेंड राउंड मुतवक्को है। और उस राउंड को, लेकिन मैं एक बात कहूँ कि अगर खुदा न खास्ता इस सेकेंड राउंड में भी आउटकम नहीं आता तो अगेन वी शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड, देयर कुड बी अ थर्ड राउंड। तो जो भी होता है वो आप अंदाजा करें कि 47 इयर्स के बाद इज सिटिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फॉर दिस लॉन्ग, सो ज़ाहिर है कि टाइम तो लगता है। लेकिन बहुत शुक्रिया जावेद मलिक साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हमारे साथ मौजूद थे, मियां मोहम्मद मोइन भुट्टो साहब थे, वफाकी वज़ीर, और इनके साथ साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब मौजूद थे, दिफाई तंज़िया का। तीनों का बहुत शुक्रिया। और जस्ट डॉट से डॉट मिलाएं, इमेजिन करें कि ट्रम्प साहब चाहते ये थे कि चीन की इजारादारी ख़त्म हो जाए, इसलिए बहुत सारी वॉर इम्पोज की गई, वेनेजुएला के सदर को उठाया गया, सज़ा के लिए पेश किया गया, वेनेजुएला का तेल कट हो जाए चीन से और जाए इजराइल की तरफ, और या अमेरिका से मुस्तफ़ीद हो जाए। उसके बाद ईरान का रुख किया गया, क्योंकि ईरान अपना 80 से 90% तेल चीन को फराहम करता है, और इस जंग में ज़ाहिर है कि ये मुतासर होने वाली ही बात थी। मगर उस तरह के आउटकम से रिजल्ट्स निकल नहीं पाए। मिडल ईस्ट का तेल बंद हो गया, चूँकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के बंद होने से दुनिया का 15 से 20% तेल रुक गया, शिपमेंट्स रुक गई। तो इससे ज़ाहिर है कि जो तेल मिडल ईस्ट से चीन लेता है वो भी मुतासर हुआ। और
इससे एक बात वाज़ेह हुई कि ट्रंप साहब एक्चुअली करना क्या चाहते थे, मगर उल्टा ये हुआ कि ताइवान की अपोजिशन लीडर जाके चीन बैठ जाती हैं, मिलती हैं, मुलाकात करती है शी जिनपिंग से। और फिर हमने ये भी देखा कि चाइना के जो रिजर्व्स हैं वो भी बड़े ज़्यादा पेट्रोल के मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद स्पेन के प्राइम मिनिस्टर चीन जाते हैं, दौरा करते हैं और फिर शी जिनपिंग उनको बताते हैं कि वो इस बार हिस्ट्री की सही संप में खड़े हुए हैं। यूरोपियंस को समझ आ गई कि हमें इस बार जो है वो अमेरिका का साथ ना देकर एक असूली फैसला करना है और दुनिया यकीन जाने एक शिफ्ट की तरफ जा रही थी। तो चीन को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में ट्रंप साहब ने जहां जहां नुकसान पहुंचाया उसकी भरपाई यकीनी तौर पे अमेरिका पर आयद होती है, लेकिन समझने की बात यह है कि क्या इससे वो ब्लॉक कमज़ोर हुआ। इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।